guys, welcome back to my channel. So today we're going to start game theory. So first let us have a basic introduction. What is game theory? A game theory, it is a special type of decision theory. So ये मेरे पास एक decision making theory होती है game theory. It is also known as competition strategy. इसको competition की strategy भी बोला जाता है. A great variety of competitive situation in commonly seen everyday life. हम हर रोज competition face करते हैं हमारे daily life में. For example, in an election, all candidates are interested to secure more votes than all other candidates. अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा तो वो क्या चाहेगा कि उसके वोट्स दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा हो. So now what is a game? A game, it is an activity under the set of rules between two or more players in which each player gets some gain or loss. What is a game? A game, it is an activity under a set of rules between two or more players in which each player gets some gain or it gets some loss. Now game theory, it is again proper definition that it is a type of decision theory in which one's choice of action is determined after assuming all possible outcomes. So game theory क्या है? एक स्पेशल टाइप की डिसीजन थ्योरी है जहाँ पे हम अपनी चॉइस बता सकते हैं in assuming all the possible outcomes. So let us discuss some basic definitions. First is n-person game. When number of players are n, where n is greater than equal to 2, then for n is equal to 2, the game is known as two persons game. कहने का मीनिंग है दो पर्सन के बीच में जाने वाला खेलने जाने वाला गेम को बोलेंगे हम n-person game, and if it consists of more than two players, then it is known as n-person game. Next we have zero-sum game and non-zero-sum game. So zero-sum game, a game is called. Now what is a zero-sum game? A zero-sum game, it is a game in which the net gain or profit is zero, means nothing come from outside. Payment is always between the players. कहने का क्या मीनिंग है जीरो सम गेम का कि ना ही लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है. इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्लेयर्स दैट इट नाइदर कम्स फ्रॉम आउटसाइड. ना ही कुछ बाहर से आ रहा है गेन ना ही अंदर से कुछ लॉस हो रहा है. सो द लॉस ऑफ ना पेमेंट इज ऑलवेज बिटवीन द प्लेयर्स. पेमेंट आपस में ही सेटल डाउन हो रही है प्लेयर्स के बीच में. द लॉस ऑफ वन प्लेयर इज द गेन ऑफ अदर प्लेयर. क्या हो रहा है? किसी बंदे का लॉस हो रहा है तो अगले बंदे का उसी का गेन हो रहा है. सो द गेम and a game which is not a zero sum game, it is known as non zero sum game. अगर जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा मेरे पास? नॉन जीरो. नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटिटिव गेम. अ गेम इज सेड टू बी कॉम्पिटिटिव इफ इट हैज द फोर प्रॉपर्टीज. अगर उसकी चार प्रॉपर्टीज है कॉम्पिटिटिव गेम की, क्या? देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स. फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर होना चाहिए. ईच प्लेयर शुड हैव फाइनाइट कोर्स फ्रैक्चर. मतलब हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ द गिवन प्लेयर्स. अ प्ले इज सेड टू बी प्लेड when each player chooses one of the course of action and no player knows the choice of the action. मतलब एक प्लेयर ने कुछ चॉइस चूज की, कुछ चालें चली, अदर प्लेयर को नहीं पता कि उसने क्या चॉइस किया of the other player until he has decided of his own. Now fourth point is when each player chooses his activity, then this combination of activity gives a result according with each player gains a payment which may be positive, negative और zero. जब भी कोई प्लेयर चूज करता है कोई भी एक्टिविटी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर प्लस या फिर माइनस और जीरो. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेटजी. व्हाट इज द स्ट्रेटजी? फॉर अ गिवन प्लेयर, स्ट्रेटजी इट इज द गिवन बाय सेट ऑफ रूल्स which specify that which of the available course of action he should make at each place. Strategy होती है it's a specific course of action a player choose. मतलब कि वो कौन सी चाल चलेगा, क्या उसकी strategies रहेंगी to win. So there are two types of strategy, pure strategy and mixed strategy. A pure strategy is the one in which one player knows what the other player is going to do. अगर मुझे पता है कि दूसरा प्लेयर क्या strategy चलने वाला है, then it is known as pure strategy. In this case, the player always choose a particular course of action. So इस केस में हमारे पास particular course of action select होता है. Next we have mixed strategy. When a player does not know exactly what the other player is going to do and probabilistic situation is obtained, such type of strategy is known as mixed strategy. अगर मुझे नहीं पता
कि दूसरा प्लेयर क्या स्ट्रेटजी चलने वाला है, देन इट इज नोन एज मिक्स्ड स्ट्रेटजी. मैथमेटिकली लेट एक्स आई बी द प्रोबेबिलिटी टू चूज ith एक्टिविटी. सपोज एक्स आई प्रोबेबिलिटी है मेरे पास ith एक्टिविटी को चूज करने की. देन वी डिफाइन द सेट कैपिटल X इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn सच दैट इन सभी का सम क्या हो जाए, हमारे पास 1 हो जाए. प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिस्टिक स्ट्रेटजीज हैं x1 x2 x3 xn. सो प्रोबेबिलिटी का टोटल सम हमारे पास होता है 1. सो इट्स सम इज 1. नेक्स्ट इज 2 पर्सन जीरो सम गेम. तो हमने 2 पर्सन देखा कि 2 पर्सन क्या होता है, बेसिकली कोई गेम है जिसके अंदर हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं. अ गेम विद ओनली 2 प्लेयर्स. नाउ जीरो सम गेम मीन्स there is no profit or no loss. The gain of one becomes the loss of other. Only this situation is handled between the players. Nothing is coming from outside. So ये हमने zero sum game की definition पढ़ी थी. So यहाँ पे क्या है, 2 person zero sum game. A game with only 2 players in which the gain of one player are the losses of another player. Then it is known as 2 person zero sum game. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर गेम. ये बात ध्यान रखना कि 2 पर्सन जीरो सम गेम, इट इज ऑलवेज एन रेक्टेंगुलर गेम. नेक्स्ट हमारे पास होता है पे ऑफ मैट्रिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे ऑफ? पे ऑफ मीन्स आउटकम ऑफ प्लेइंग अ गेम, कि क्या क्या आउटकम्स हैं. सो हम यहाँ पे ए की पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे, देन बी की. देखिए ए की पे ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, सपोज हमेशा यहाँ पे प्लेयर ए लिखा जाता है, यहाँ पे प्लेयर बी लिखा जाता है. फिर 1 2 3 अप टू m यहाँ पे हमारे पास नंबर्स लिखे जाते हैं. सिमिलरली 1 2 3 4 एंड यहाँ पे नंबर्स लिखे जाते हैं कि ये ऑप्शंस, इसके बाद ही कौन सा चूज़ करना चाहेगा. फिर हमारे पास ए ने चाल चली V11, या फिर स्ट्रेटजी कह सकते हैं हम, 1 to 1 कॉलम में V11. सिमिलरली फॉर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम V12 वी हैव द प्रोबेबिलिटीज, देन वी हैव V1n. नाउ वी हैव सिमिलरली विल कंटिन्यू दिस टू VM1 VM2 VMn. सो हम बात करें अगर ए को गेन हुआ है V11, सो यहाँ पे बी को क्या होगा, लॉस होगा. सो इस टेबल में सिर्फ हम ए का दिखाते हैं जो राइट हैंड साइड होता है. सिमिलरली अगर मुझे बी की पे ऑफ मैट्रिक्स बनानी है, क्योंकि ए का तो गेन हो रहा है तो बी का लॉस होएगा, सो स्पेशली बी की दिखाने के लिए मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, नेगेटिव ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए. सो इन एज पे ऑफ मैट्रिक्स द एंट्री Vij इज द पेमेंट ऑफ प्लेयर बी. जो Vij एक पेमेंट है प्लेयर की, वेयर ए चूज द ith एक्टिविटी, जहाँ पे ए ने चूज की ith एक्टिविटी और बी ने चूज की jth एक्टिविटी. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनी मैक्स एंड मैक्समिन प्रिंसिपल. यही हम यूज करेंगे यहाँ पे. सो इफ अ प्लेयर लिस्ट हिज वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ऑल द पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं यहाँ पे of all his potential strategy, then he will choose the best strategy among all the outcomes. देखिए मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी मेरी वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स थी, जितनी मैं वर्स्ट स्ट्रेटजीज चल सकती थी, मैंने सारी चल दी. अब उनमें से सभी वर्स्ट में से कोई तो एक होगी जो थोड़ी सी ठीक होगी. दैट इज नोन एज पोटेंशियल स्ट्रेटजी. मतलब जो मेरी स्ट्रेटजीज है उसमें से मैंने बेस्ट स्ट्रेटजी, जो गंदी वर्स्ट स्ट्रेटजीज थी उसमें से मैंने बेस्ट स्ट्रेटजी चूज की अमंग द ऑल स्ट्रेटजी. सच इज नोन एज मैक्समिन प्रिंसिपल. मैक्समिन मतलब मिनिमम थी, बैड स्ट्रेटजीज थी, बैड में से मैंने मिनिमम स्ट्रेटजीज मतलब बैड स्ट्रेटजीज, उसमें से मैंने मैक्सिमम वाली चूज की. दैट इज नोन एज मैक्समिन प्रिंसिपल. अब हम बात करें मिन मैक्स प्रिंसिपल की. मिन मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम. देखिए जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब जो बैक साइड में होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है. मेरी वर्स्ट स्ट्रेटजीज में से मैंने सबसे अच्छी स्ट्रेटजी चूज की, मैंने सबसे अच्छी स्ट्रेटजीज में से सबसे वर्स्ट स्ट्रेटजी चूज की. सो इसका मीनिंग ये है. अगर मैं बात करूँ मिन मैक्स की डेफिनेशन क्या होगी, if a player lists his best possible outcomes of all his potential strategy, then he will choose the worst strategy among all these outcomes. Then it is known as min-max principle. Now what is a saddle point? Saddle point, a point is minimum in its row. रो में मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए हमारे पास कॉलम में, उसको हम बोलते हैं सैडल पॉइंट. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी. ऑप्टिमल स्ट्रेटजी या फिर वैल्यू ऑफ गेम. If in a given pair of matrix ijth is a saddle point. बेसिकली हम क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन आ रहा है. देन द प्लेयर ए एंड बी सेट टू हैव ऑप्टिमल स्ट्रेटजी. अगर मेरे पास सैडल पॉइंट आ रहा है, सो हम उसको बोलेंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए एंड बी. एंड द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू आएगी मेरे पास ith jth सेल की, उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ गेम. ये तो आगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी जो हमने चूज की, और उसमें से जो वैल्यू ऑफ गेम निकल के आएगी वो होएगी मेरे पास स्मॉल वी से हम उसको डिनोट करेंगे. सो ये था बिल्कुल बेसिक. अब हम करेंगे क्वेश्चंस.
So we have the first question. The player A of matrix, it is given, and you have to find the optimal strategy by using max min और min max criteria. So आपको मैट्रिक्स गिवन है. अब देखिए आपको कैसे करना है. सब ये आपको मैट्रिक्स गिवन है. यहाँ पे आपको दे रखा है प्लेयर ए और यहाँ पे दे रखा है प्लेयर बी. सो रो वाइज लगता है मिन मैक्स प्रिंसिपल. सब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो है, इसमें से सबसे मिनिमम देखेंगे -3 -2 -3. इन सब में से सबसे मिनिमम है -3, तो हम यहाँ लिख लेंगे -3. सो रो वाइज हम फाइंड आउट करेंगे मिन मैक्स. मिन मैक्स मतलब सॉरी मैक्स मिन. रो वाइज हम फाइंड आउट करते हैं मैक्स मिन, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम. और हम कॉलम वाइज फाइंड आउट करते हैं, यहाँ लिख लीजिए आप, कॉलम वाइज फाइंड आउट करते हैं हम मिन मैक्स, क्योंकि पहले जो पीछे लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है. नाउ फ्रॉम दिस रो 2 0 2, इनमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0. फ्रॉम नेक्स्ट रो 5 -2 -4, मिनिमम एलिमेंट है -4. अब हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यूज थी, अब हम फाइंड आउट करेंगे इनका मैक्सिमम. इनका मैक्सिमम क्या है, 0. नाउ फ्रॉम कॉलम वाइज वी विल फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू. सो -3 2 5 में से मैक्सिमम है मेरे पास 5. -2 0 -2, मैक्सिमम क्या है, 0. -3 2 -4, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 2. मैक्सिमम फाइंड आउट करने के बाद हम इस सब में से क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम, क्योंकि मिन मैक्स प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले मैक्सिमम फाइंड आउट करो देन मिनिमम फाइंड आउट करो. सो इसमें मिनिमम आ रहा है 0. अब देखिए मिन मैक्स के अकॉर्डिंग और मैक्स मिन के अकॉर्डिंग वैल्यू अगर सेम आ रही है, मतलब यहाँ से भी 0 आ रही है, यहाँ से भी 0 आ रही है, सो यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. सैडल पॉइंट एग्जिस्ट. आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करा, वो इसी से पता लगेगा कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं करा. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना. तो देखिए 0 आ रहा है, 0 यहाँ से आया, ये वाला एलिमेंट, और यहाँ से ये वाला 0 आया, तो ये वाला एलिमेंट मेरे पास क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम. यहाँ से आप लिख दोगे वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द सैडल पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ गेम. सो आपको क्या करना है, रो वाइज हम फाइंड आउट करेंगे मैक्स मिन प्रिंसिपल से, मतलब पहले हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वैल्यूज. तो अब क्या करते हैं, जो मिनिमम वैल्यूज है ना उसको सर्कल में कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हम मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे उसको हम स्क्वायर में बना देंगे. जहाँ पे सर्कल और स्क्वायर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सर्कल भी आ रहा है स्क्वायर भी आ रहा है, तो वो मेरे पास हो जाएगा सैडल पॉइंट, और वहाँ से मुझे मिल जाएगी वैल्यू ऑफ गेम. या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सर्कल और स्क्वायर बनाने से आपको आसानी रहेगी. सो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है इन सब में से, 0, इसको हमने कर दिया सर्कल, तो यहाँ लिख दिया 0. उसके बाद देखिए इसमें से मिनिमम वैल्यू है 4. नेक्स्ट रो में से मिनिमम वैल्यू है 2. नेक्स्ट रो में से मिनिमम वैल्यू है 1. अब क्या फाइंड आउट करना है, इनका मैक्सिमम, इन सभी का मैक्सिमम. सो इन सभी का मैक्सिमम मेरे पास 4. नाउ मैक्सिमम फाइंड आउट करना है कॉलम वाइज. सो कॉलम में मैक्सिमम है यहाँ पे मेरे पास 9, यहाँ पे कॉलम में मैक्सिमम है 6, यहाँ पे कॉलम में मैक्सिमम है 4. अब देखिए 4 आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, मैं इसको कर रही हूँ ताकि मुझे कॉमन पॉइंट मिल जाए. नाउ 8 6 3 2, मैक्सिमम क्या है 8. नाउ हेयर मैक्सिमम इज 8. नाउ वी विल फाइंड मिनिमम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. इनका मिनिमम क्या है मेरे पास 4. सो यहाँ से भी 4 आ रहा है. फ्रॉम हेयर वी कैन राइट मिन मैक्स इज इक्वल टू मैक्स मिन. दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास, 4 and 4. यहाँ से भी 4 आ रही है और यहाँ से भी क्या आ रही है, 4 आ रही है. इसका मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, और सैडल पॉइंट होगा क्या, जो दोनों के इंटरसेक्शन से मिल रहा है. तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 4. तो दोनों वैल्यूज से इंटरसेक्शन से मिलता है, वो होता है वैल्यू ऑफ गेम, जिसको हम डिनोट करते हैं V से. सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.